योगी बनो, उपयोगी बनो, योगी बनो, उपयोगी बनो। नैतिकता के पथ पर कौन चलेंगे? हम चलेंगे, हम चलेंगे। नैतिकता के पथ पर कौन चलेंगे? हम चलेंगे, हम चलेंगे। मानव से देव कौन बनेगा? हम बनेंगे, हम बनेंगे। मानव से देव कौन बनेगा? हम बनेंगे, हम बनेंगे। ओम शांति। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ સર્વ બહેનોનો. આપણને એક નવી ચેતના અને જાગૃતિ અપાવી દીધી. પહેલાંના સમયની અંદર ગુલાબ એ જંગલમાં થતા, પરંતુ માનવીએ એને બગીચામાં ઉગાડી તેમાં એક નવા રંગ, રૂપ, સૌંદર્ય અને નજાકત લાવી દીધી. બસ આવું જ કર્તવ્ય કંઈક શિક્ષણ કરી રહ્યું છે. અને સાથે સાથે શિક્ષક અર્થાત અગાધ શ્રદ્ધા, ખારા સમુદ્રને મીઠો બનાવી દેવાની અગાધ શ્રદ્ધા અર્થાત શિક્ષક. આ શિક્ષણ અને શિક્ષક બંનેના સુંદર તાલમેલ સાથે સમાજને સુસંસ્કૃત બનાવવાની જવાબદારી જેમણે લીધી છે એવા આદરણીય ભ્રાતા દીપકભાઈ, જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી શ્રી, આપ પણ આજના કાર્યક્રમ નિમિત્તે આપની શુભ પ્રેરણા પ્રગટ કરશો. ભ્રાતા દીપકભાઈ. ओम शांति. आत्मीय प्रेरणामूर्ति श्रद्धेय डायस, सौ संचालक, शिक्षक मित्रों, ब्रह्मा कुमारीना दीदीश्रीओ, भ्राताओ, सर्वेने शिक्षण विभाग तरफथी ओम शांति. मित्रों, शिक्षकों आववाना छे, शिक्षकों ने कई कहेवानुं छे एवी वात ज्यारे दीदीए करी त्यारे अत्यारे वेकेशननो तबक्को शरू थवानो छे. ए वखते घणा काम होय छतां पण आववानुं मन थयुं. प्रभुए बोलाव्या अने आपना दर्शन करवा मळ्या बदल परम कृपाळु परमात्मानो हूँ सदैव ऋणी रहीश. शिक्षक कहेवानुं होय ज नहीं कि आपणे आ करवानुं छे. शिक्षक तो हमेशा युवान होय ज, अने युवान न होय शिक्षक न होय. कारण के जेने घडवैयो कया होय, घडवैयो केवो होय, घडनार केवो होय. तकलीफ त्यां शरू थई छे. शिक्षक शब्द में शिस्त, क्षमा अने करुणा हती. ए क्यांक उणप आवी एटले आपणे घडवैयानी शोधमां निकळवुं पड्युं बीजा घडवैयानी. घणा मारा शिक्षक मित्रों नौकरी जोड़े दीदी अने शरू करे, बदली क्यारे थशे. घणा मारा शिक्षक मित्रों स्कूल में जाए अने खुर्शी में बेसीने हाश बोले त्यारे थाय के घडवैयो थाकी गयो. मित्रों, शिक्षक केवो होवो जोईए, हमेशा चपड़ता, चंचलता, बाळक में कंईक जे छे एने बहार लाववानी शक्ति शिक्षक में होय अने ए जंगतो होय अने तरवैयाथी फरतो होय तो साचो शिक्षक छे. घणा शिक्षक मित्रों आपणे कहीए छीए के भारत देश युवानोनो देश छे. भारत में बीजा नंबरना युवानो छे, बीजा देश पछी सेकंड नंबर आपणो युवानो में छे. युवान कोने कहेवाय? युवानोनो देश होवाथी युवान थवातुं नथी, परंतु गांधी माटे कहेता के जुवान डोसलो, डोसलो पण जुवान
આપણે બધા જુવાન છીએ અને કંઈક કરી શકવાની ક્ષમતા છે, કરી શકીએ છીએ, કરીશું તો ઘડપણ પણ યુવા જ છે. અને એના વિરુદ્ધમાં પણ છે, યુવા પણ ઘડપણ છે. હાશ, થાકી ગયો, થાકી ગઈ, ક્યારે 5 વાગશે, ક્યારે જઈશ, શું કરીશ, મારાથી થશે, હું નહીં કરી શકું, હું જ કરી શકું એવું ખરું? ઘણા લોકો તો એવું કહે છે, ઘણા મારા શિક્ષક મિત્રો નિવૃત્ત થવાના હોય ને કે અમે આટલા વર્ષથી કર્યું, કશું ના થયું, તમે પણ કશું નહીં કરી શકો. પહેલો થપ્પો. જ્યારે આપણે શિક્ષક તરીકે જોડાઈએ એટલે આપણા જે અનુગામી, જે પુરોગામી, આપણા જે વડીલો એ કહેતા હોય અમે ઘણું કર્યું, કંઈ થયું નહીં, એટલે આપણે કહીએ કે મારાથી પણ કંઈ થશે નહીં. યુવાન એને કહેવાય તમે કશું ન કર્યું, કંઈ નહીં, હું કરીશ, અમારાથી થશે, અમે કરી શકીશું, અમે નવજુવાન છીએ. અને હતોત્સાહી થવાની જરૂર નથી, કારણ કે આપણામાં શક્તિ છે, આપણે કરી શકીશું. એ શિક્ષક કરી શકે. પણ આપણે નેગેટિવ સાંભળીને નેગેટિવ લેવા ટેવાયેલા છીએ. બીજો ના કરી શકે, હું શું કરી શકું? બીજો ના કરી શકે, હું કરી શકું. કેમ? મારામાં શક્તિ છે, હું કરી શકીશ, મારાથી થઈ શકશે અને હું જ કરી શકીશ. જો આટલું આવી જાય ને તો આપણો આખો દેશ બદલાઈ જાય, સ્કૂલ બદલાઈ જાય, સમાજ બદલાઈ જાય અને શિક્ષક પોતે બદલાઈ જાય. દીદીએ વાત કરી કે અત્યારે બધા હેલ્થની પાછળ નહીં, વેલ્થની પાછળ જાય છે. પહેલો જ નિયમ છે વેલ્થ. હેલ્થને બગાડીને વેલ્થ અને વેલ્થને બગાડીને પછી હેલ્થ. છેવટે હતા એના ત્યાં જ. હેલ્થને બગાડીને કરોડો ભેગા કરે, કરોડો ખર્ચીને હેલ્થ પાછી લીધી અને પછી જ્યાં જવાનું છે છેલ્લે ત્યાં, અને એમાં કશું મેળવ્યું નહીં. હેલ્થ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. જ્યારે પણ શિક્ષક ચિંતન કરે, મનન કરે, યોગ કરે, સંયોગ કરે અને સાથે મળી અને બાળકો જોડે જાય અને પોતે હેલ્ધી છે એવું પ્રતિપાદિત કરે તો બાળકમાં પણ ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય. આ તો એવા બેઠા હોય ને કે બાળક કહેતા કે સાહેબ જોડે જવું જ નહીં, રહેવા દે, સાહેબ જ થાકી ગયા છે. અને જ્યારે સામેનો વ્યક્તિ થાકેલો લાગે ત્યારે પોતે પણ થાકી જાય. આપણે એવા ઉત્સાહી હોવા જોઈએ. મને ઘણા લોકો કહે છે કે ઓફિસમાં આવે કે 6 વાગે પણ સાહેબ તમે હસતા હોય છો. મને એવું લાગે છે કે હું હસું ને તો જ બીજાને આવવું ગમે, બીજાને મળવું ગમે, બીજાને રહેવું ગમે. નહીં તો એમ જ થાય કે સાહેબ તો હવે બેટરી ડાઉન થઈ ગઈ હશે, નથી જવું, ના આવે કોઈ. મિત્રો, આપણી જોડે તાકાત હોવી જોઈએ, ઉર્જા હોવી જોઈએ. અને બીજું અહીંયા છે મસ્ત કે પોઝિટિવ એટીટ્યુડ હોવો જોઈએ. શિક્ષક તરીકેનો મારે બીજાને ઉપદેશ નથી આપો, તમને કહેવું છે કે શિક્ષક તરીકે તમારામાં પોઝિટિવ એટીટ્યુડ હોવો જોઈએ. બધામાં એટીટ્યુડ હોય છે, પણ એટીટ્યુડ કેવો હોવો જોઈએ? એટીટ્યુડ એટલે હમણાં હું ગયો તો એક મંદિરમાં અને 2 રૂપિયા હતા, પેલા ભિખારીને આપ્યા, એને કીધું સાહેબ પાછા લઈ જાઓ, 10 થી નીચે નહીં લેતો. એટલે એટીટ્યુડ. વોટ ઇઝ એટીટ્યુડ? આ એટીટ્યુડ છે, પણ એવો એટીટ્યુડ આપણામાં હોવો જોઈએ. પણ કેવો? શિક્ષક છું, શિક્ષકનો એટીટ્યુડ છે અને મારામાં પોઝિટિવ એટીટ્યુડ છે, હકારાત્મક અભિગમ છે. ક્યારે શિક્ષક નેગેટિવ બાજુ જોઈ ન શકે. મારા કોઈ પણ ભગવાને કોઈ પણ ક્રિએશન ખાલી મૂક્યું નથી. અહીંયા કોઈ પણ ક્રિએશન છે એનામાં કંઈ ને કંઈ પડેલું છે. તો મારું બાળક જે છે એમાં ભલે ભણતર નથી, પણ આપણે એવું ઘડતર કરીએ કે આવનારા સમાજને ચણતર કરી શકે. એનામાં એ છે જેને વ્યાયામમાં શોખ છે વ્યાયામ બાજુ જાય, સાંસ્કૃતિકમાં શોખ છે એમાં જાય, વાંચનમાં, લેખનમાં, ગણનમાં જ્યાં શોખ છે ત્યાં જાય. પણ એ બાળકનો શોખ શું છે, બાળકમાં ઇનર શું છે, એ શોધવાનું કામ એ શિક્ષકનું છે. અને એ માટે તમારે જોડે શું જોઈએ? પોઝિટિવ એટીટ્યુડ. દરેકનામાં શું સારું છે એ વીણવાની શક્તિ, એ શોધવાની શક્તિ, એ જાણવાની શક્તિ. આ તો ઘણી વખતે રિટાયર્ડ થાય તો ખબર ના પડે કે મારામાં શું છે. બીજાને શોધવાની તો વાત ઠીક છે, પણ આપણને ખબર ના હોય સ્વમાં શું છે. સ્વને શોધો, બીજાનામાં મળી રહેશે. અને બીજી વસ્તુ છે સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ, આત્મ સન્માન, આત્મગૌરવ, આત્મબળ અને આપણા ઉપર આપણું
સન્માન માટેનો સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ, આત્મવિશ્વાસ. આપણે આપણા પર કોન્ફિડન્સ ગુમાવી દઈશું કે હું નહીં કરી શકું. મિત્રો, હમણાં જ દીદીએ કહ્યું કે શિક્ષક ઉપર તો સમાજનો આધાર છે, સમાજની અપેક્ષાઓ છે, સમાજની ઈચ્છાઓ છે, સમાજની આકાંક્ષાઓ છે. આ શિક્ષક એમ કે હું નહીં કરી શકું તો ભારત દેશમાં કોઈ કશું નહીં કરી શકે. આપણે કરવાનું છે, હું જ કરી શકીશ. આ શિક્ષકનામાં સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ હોવો જોઈએ. મારા બાળકો જે આવે છે એ ગરીબ પરિવારમાંથી આવે છે, ત્યાં શિક્ષણનું સ્તર નથી. બાળકો એવા આવે છે લગર વગર આવે છે, એ બાળકોને હું નહીં ભણાવી શકું. સેલ્ફ ફાઇનાન્સમાં સારા બાળકો છે. મારા બાળકો સરકારીના એવા છે, જેવા છે એવા છે, પણ મનમાં આવવું જોઈએ એ મારા છે. તમારા પોતાના બાળકો હોય નહીં લાગતું? કોઈ વખતે ઘણા એકદમ ગોબરાથી ને આપણા ઘરમાં આવે બાળક તો આપણે ક્યાંક જાવી ના રહેવાય, કહીએ છીએ મારું છે, તરત લૂસી નાખીશું, નવરાઈ નાખીશું, બધું કરીશું, ગળે લગાવી દઈશું. કેમ? ત્યાં શબ્દ આવ્યો મારું છે. અને મારા માટે પ્રેમ હોય ને ત્યાં બધું જ હોય. એટલે ત્યાં શાળા છે, બાવનારું બાળક છે, જે છે એ મારું છે. અને એના માટે ઉત્થાનની શરૂઆત કરો, તમારું પોતાનું અને સમાજનું અને બાળકનું અને જ્યાંથી આવે એ સમાજનું, એ પરિવારનું ઉત્થાન થવાનું છે. મિત્રો, સવારે બહુ સરસ સુવિચાર વાંચ્યો. એમાં લખ્યું હતું કે મારા ઘરનું ભરણ પોષણ થાય છે, મારા બાળકોનું ભરણ પોષણ થાય છે, એ બાળકોના લીધે થાય છે. મારું ઘર એ બાળકોને લીધે ચાલે છે કે જેના માટે હું જાઉં છું, જેને હું ભણાવું છું, જેના માટે ગૌરવ કરું છું. જો જેનું આપણું ભરણ પોષણ થતું હોય તો એના માટે તો આપણે ગર્વ હોવો જોઈએ. ગર્વ હોવો જોઈએ કહું છું. ક્યારે છોડી ના દેતા, મારાથી નહીં થાય, મારાથી જ થશે. કારણ કે ઘડવૈયા કયા છે. જ્યારે શિક્ષક બને છે, મિત્રો બનાવવામાં નથી આવતા, બનવાનું હોય છે. ટીચર ઇઝ બોર્ન નોટ મેડ, પોએટની માફક. ઘણા બની બેઠે છે. ઘણા કે મારે પીએસઆઈ બનવું હતું, પણ સાહેબ શું થયું, માર્ક્સ ના આવે, બીએડ કર્યું અને શિક્ષક થઈ ગયો. 58 સુધી પીએસઆઈ રહે, એને ભણાવવામાં ના ગમે, એને દંડો જ ક્યારે કોઈ ઝડપાય. મિત્રો, આ વૃત્તિ બનવાનું નથી, બનાવવાનું નથી. આપણે છીએ શિક્ષક બનવા માટે જ મને કુદરતે મોકલ્યો છે. શિક્ષક બન્યો છું. હમણાં જ કહ્યું કે હેલ્થ ઇઝ વેલ્થ, વેલ્થ ઇઝ નથિંગ. યાદ રાખજો. બંગલાઓ મોટા છે, ગાડીઓ મોટી છે, પણ આપણને ઘણી વખત એવું બને કે એમને જોઈને ઈર્ષ્યા આવે કે સાલું આવું હોય તો. શિક્ષકમાં તો શું 4,500 અને પૂરો પગાર થાય એટલે જે હોય. પણ પેલાને કેટલી લેર છે. પણ ઘણી વખત પૂછો એમને કે ગાડીમાં બેઠા પછી ગંતવ્ય સ્થળથી જે જડે જવાનું હોય આવે ત્યાં સુધી ખબર જ ન હોય ક્યાં આવી ગયો. એમને ગાડીનો અનુભવ થાય પણ આનંદ ના હોય, કારણ કે વિચારો એટલા ચાલતા હોય ને કે ગાડીનો આનંદ જ ના હોય. ઘરમાં રહેતા હોય મોટા બંગલામાં 3 માળના 4 માળના, પણ કયા માળે જાય છે ખબર જ ના હોય, કારણ કે વિચારો જ ચાલતા હોય. ઊંઘે તો પણ વિચારો ચાલતા હોય. એવું નથી જોતું. શું કે સંપત્તિમાં નથી, શું કે આત્મા સન્માનમાં છે, શું કે આત્માના આનંદમાં છે. શિક્ષક તરીકે દરરોજ ઊંઘો અને મનમાં થાય આજે 4,500 તો 4,500 જે લીધા છે એ મેં આજે સારું કર્યું છે, મને સંતોષ છે, મારા બાળકોને સંતોષ છે. ઊંઘી જજો, ઊંઘ સારી આવશે, બહુ મસ્ત ઊંઘ આવશે. અને એ જ આપણા માટે આત્મસંતોષ. એક શિક્ષકનો જીવ, શિક્ષક બનવાનો ભગવાનનું આપણને આપેલું કર્મ, એને આપણે જાળવીએ, સાચવીએ. એને ક્યારે સેમિનારમાં નહીં. ઘણા લોકો શું કરશે હમણાં કે દીદી કહેશે સાચું તો છે, હાલવું સાહેબ કહે છે સાચું તો છે, પણ અહીંથી નીકળ્યા પછી હાશ પૂરું. મિત્રો, પૂરું બધું થવાનું છે. જન્મ્યા જાતશ્યવી ધ્રુવ મૃત્યુ, જન્મ્યા મૃત્યુ પણ થવાનું છે. પૂરું બધું થવાનું છે. કંઈ લઈને આવ્યા નથી, કંઈ લઈને જવાના નથી. પરંતુ કેવી રીતે પૂરું કરીએ છીએ એ મહત્વનું છે. પૂરું કરવામાં પણ સારી રીતે, બીજાને યાદ રહે એ રીતે પૂરું થાય એ આપણી સફળતા છે. તો તમે બધા જ શાળાઓને આપણું
સ્થાન ગણી, આપણી પોતાની ગણી અને કામ કરીએ. અને અહીંયાથી જે કહેવામાં આવે એને નવા સત્રમાં, હવે એક દાડામાં નહીં થાય કશું, શનિવાર જ બાકી છે, પણ નવા સત્રમાં એને આપણી શાળામાં એપ્લાય કરીએ અને બાળકને મૂલ્યવાન બનાવીએ. મિત્રો, વેલ્યુ બેઝ એજ્યુકેશન એ નવી શિક્ષણ નીતિમાં આવી રહ્યું છે. કોઈ પણ વસ્તુ છે ચળકે છે એટલે એનો, આપણે તો ડાયમંડ સિટીમાં બેઠા છીએ, ચળકે છે એટલે હીરો છે ના કહેવાય, બધા ચળકે છે, પણ વેલ્યુ કોની છે? સાચા હીરાની છે. આ એજ્યુકેશન જોઈએ છે કે આપણે સાચા બાળકો તૈયાર કરી શકીએ, 99%વાળા નહીં, 100% નહીં. અત્યારે સેલ્ફ ફાઇનાન્સ સ્કૂલો ચાલુ થઈ છે, બાળકોના વાલીઓ રિઝલ્ટ જોઈએ, સાહેબ 99. અરે મારો બેટો એટલે પૂછો ABCD આવડે છે ભાઈ? ખબર છે નથી આવડતી, પણ માર્ક જોઈને વાલી ખુશ થાય છે, ગુણ જોઈને નહીં. હું દરેક વખતે કહું છું, ગુણ જોઈને નહીં, પણ ગુણ જોઈને સંગ કરો. ગુણ એટલે વેલ્યુઝ, પેલા માર્ક્સ નહીં. આ વેલ્યુઝ વધારો, બાળકની વેલ્યુ આવે. કોઈ કે ના મારો બેટો છે, હોશિયાર છે, મારા બેટામાં કંઈ પડ્યું છે, તો સમજી લેજો કે આપણે જે ઘડ્યો છે એ ઘડો પાકો છે, નહીંતર એ ઘડાયેલો નથી. એટલે આવા વેલ્યુ બેઝ યુવાનો તૈયાર કરીએ, યુથ તૈયાર કરીએ, અને મોબાઈલમાંથી બહાર કાઢી અને યુથ Y20માં કહ્યું કે બાળકોને મેદાનમાં લઈ જઈએ. મને તો એક સ્કૂલમાં ગયો અને કે સાહેબ અમારી સ્કૂલમાં તો અવાજ ના આવે. તમે જુઓ સાહેબ, કાબર બોલે તો પણ ખબર પડે. મેં કીધું બાળકો બોલવા દો, કાબર નહીં બોલાવવાની અહીંયા, મારે બાળકોને બોલાવવાના છે. એટલે જે સ્કૂલમાં અવાજ ના આવે એ સ્મશાન વધ શાંતિ મારે નથી જોતી. છોકરાઓ હોય તો વર્ગમાં અવાજ થવો જોઈએ અને ભણવા જોઈએ. અરે મેદાનમાં ભણવા જોઈએ, મેદાનમાં લઈ જવાનું ભણાવો. કારણ કે આપણે એ વસ્તુ છે કે ક્યાંથી આવડે, મૂલ્યનો હાસ ક્યાં થયો છે. શિક્ષકો કે સાહેબ છોકરા જેવા આવે છે. અત્યારે કોલેજોમાં જઈએ ને સાહેબ, 11-12માં 9થી 12માં એવું ભણાવે છે ને, ત્યાં હું ડીઓમાં છું. પછી 9-12 વાળા એમ જ કહે સાહેબ પ્રાઇમરીમાંથી એવા આવે છે. હું DPOમાં છું એટલે મારે બહુ ટેન્શન એ છે. અને પ્રાઇમરીમાં જઈએ કે સાહેબ બાલ મંદિરમાંથી જ એવું છે. અને બાલ મંદિરવાળા, આંગણવાડીવાળા કહે છે કે સાહેબ કંપની ફોલ્ટ છે. મિત્રો, એકબીજા ઉપર દોષારોપણ કર્યા વગર મારી જોડે બાળક આવે છે, મારું કર્તવ્ય છે મારે કરવાનું છે. હીરો ગમે ત્યાંથી આવે છે, ઘડવાનો મારે છે. પછી એમ કે નહીં સુદાનમાંથી આવેલો હતો, કાચોમાં નહીં, હું કેવી રીતે ઘડી શકું એ જોઈએ. શિક્ષકો કહી રહ્યા છે કે સાહેબ બાળકો આવા છે. એક વખતે લો ચુંબકે ભગવાનને કહ્યું કે સાહેબ ભગવાન આ તો કેવું છે, ટાંકણીઓ આકર્ષાતી જ નથી, ટાંકણીઓને શું કરવું? ભગવાને પછી જોઈ ખબર પડી કે લો ચુંબકનું લોહ તત્વ ઘટી ગયું છે. ભાઈ તારામાં જ લોહ તત્વ નથી, ટાંકણી ક્યાંથી આકર્ષાય? શિક્ષકમાં શિક્ષક તો ન હોય તો બાળક કદી આકર્ષાય નહીં. આપણે ધાર કાઢો, આપણે આકર્ષવા માટે કરો, બાળક તો સામે ચાલીને આવી જશે. એક દિવસ રજા પડશે તો બાળકને નહીં ગમે, એ દિવસે આપણે સાચા ગુરુ. પણ આ તો રજાઓ ક્યારે પડે એની આપણને જ પડી હોય, ક્યારે છૂટીએ. અને ઘણા શિક્ષક મિત્રો સાહેબ વળતર રજા આપો. અરે આટલી બધી રજાઓ નિમાય વળતર રજા? તને નથી ગમતું સ્કૂલમાં? જ્યારે આવું બધું માગતા થઈશું ને, માગવા કરતા માણતા શીખો. અને માણતા થઈશું ને તો જીવન જીવવાની મજા આવશે. મિત્રો, બાળકને કેવી રીતે તૈયાર કરવું એ તમારા હાથમાં છે. એક શેઠનું કૂતરું બીમાર પડ્યું, ગમે તેટલી દવા કરે સાજું ન થાય. શું કરવું? શેઠ ટેન્શનમાં, કૂતરું બીમાર. ડૉક્ટરે દવા લખીને આપી. એક શીશી હતી, બાટલી, બોટલ. કૂતરું નજીક આવીને શેઠ હલાવતા હતા ને એમ કરતા 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 શીશી પડી ગઈ, દવા ઢોળાઈ ગઈ, કૂતરું ચાટી ગયું, રોગ મટી ગયો. કહેવાનો મતલબ જે પણ રીતે બાટલી તોડો, ફોડો, ચમચીથી પાવ, ના પાવ, રોગ મટે. એ જ મહત્વનું છે. બાળક શીખે એ મહત્વનું છે. જે પણ રીત અપનાવી લો, મેદાનમાં લઈ જાઓ, વર્ગમાં રાખો, કે જે કરવું એ કરો. પણ બાળકને જ્યારે અહીંયાથી કહેવામાં આવે છે કે ઘડવૈયા તરીકે ઘડો, ત્યારે આપણી ફરજ છે એને ઘડીએ
આવનારા દિવસોમાં સારા સમાજના નિર્માણમાં એક નાગરિક સારો બને. હીરા ચમકાવવાળા સુરતમાં હીરા ચમકાવે, પણ આપણે આપણા બાળકને ચમકાવીએ એવી પ્રવૃત્તિ કરીએ. એ જ મારી આશા, અભિલાષા, અને ભગવાન એમાં આપણને સાથ આપે એવી ભગવાનને પ્રભુ પાસે પ્રાર્થના. અસ્તુ. ખૂબ ખૂબ આભાર આદરણીય દીપકભાઈ. આદરણીય ગીતાબેને પોતાના પ્રવચનમાં એક વાક્ય બહુ સરસ કહી હતી કે કૂવામાં હોય તો હવાડામાં આવે. એ વાક્યને સાર્થક કર્યું આદરણીય દીપકભાઈએ. આપણા જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીમાં જ જો આટલો ઉમંગ ઉત્સાહ હોય તો આપણા શિક્ષક ભાઈ બહેનોમાં ઉત્સાહનો સંચાર તો અવશ્ય રહેશે જ રહેશે. આપની શુભ પ્રેરણા બદલ આદરણીય દીપકભાઈને ફરીથી ખૂબ ખૂબ આભાર. સ્ટેજના સર્વ મહાનુભાવોને બ્રહ્માકુમારી સંસ્થા દ્વારા સોગાત અર્પિત કરશે આદરણીય તૃપ્તિબેન. સર્વપ્રથમ સોગાત અર્પિત કરશે ભ્રાતા દીપકભાઈ દરજી, જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી શ્રી સુરત જિલ્લો. આપણે સૌ કરતલ ધ્વનિથી વધાવી લઈશું. ભ્રાતા ડૉક્ટર પ્રફુલભાઈ શિરોયા, ચેરમેન શ્રી લોક ટ્રસ્ટી ચક્ષુબેન. ભ્રાતા લાલજીભાઈ, સંચાલક શ્રી જ્ઞાનજ્યોત વિદ્યાલય. આપણા ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ માનનીય અબ્દુલ કલામજીએ એક વખત પોતાના પ્રવચનમાં ખૂબ સરસ વાત બતાવી હતી કે આવનારા સમયની અંદર વિજ્ઞાનની સાથે સાથે આધ્યાત્મિકતાની પણ એટલી જ જરૂરિયાત રહેશે. વિજ્ઞાન, શિક્ષણ એ મનુષ્યને શિક્ષા આપે છે, જ્યારે આધ્યાત્મિકતા એ મનુષ્યને દીક્ષા પ્રદાન કરે છે. જ્યારે શિક્ષા અને દીક્ષાનો સુભગ સમન્વય થાય ત્યારે જીવનને એક નવી દિશા પ્રાપ્ત થાય છે. આધ્યાત્મિકતાના પથ પ્રદર્શક, રાહબર એવા આદરણીય ગીતાબેન હવે આપણને સર્વને પ્રશિક્ષિત કરશે. આદરણીય બ્રહ્માકુમારી ગીતાબેન, આપ ફક્ત 15 જ વર્ષની અલ્પાયુમાં આપનું જીવન આ ઈશ્વરીય સેવામાં સમર્પિત કરેલ છે. આપ સ્પિરિચ્યુઅલ હેલ્થ તથા કાઉન્સિલિંગમાં MSc કર્યું છે અને તેના માટે આપને સાઉથ વેસ્ટર્ન અમેરિકન યુનિવર્સિટી દ્વારા ડોક્ટરેટની માનદ ઉપાધિ પણ પ્રાપ્ત થયેલ છે. 2021ની અંદર કોરોના કાળમાં સામાજિક સેવાઓ બદલ વર્લ્ડ બુક રેકોર્ડ્સ તેમજ WHO દ્વારા આપને સન્માનિત પણ કરવામાં આવેલ છે. આધ્યાત્મિકતાની સાથે સાથે સામાજિક ઘણી બધી પ્રવૃત્તિ આપ કરી રહ્યા છો. આપે ભીનમાલમાં અનેક સ્વાસ્થ્ય શિબિરોનું આયોજન કરી 50,000થી પણ વધુ ગ્રામીણ જનતાને નિદાન તેમજ વિનામૂલ્યે ઔષધિ પ્રાપ્ત કરાવેલ છે. 10,000થી પણ વધુ લોકોને નિઃશુલ્ક મોતિયાના ઓપરેશન કરાવ્યા છે. આપ જૈન ધર્મ ઉપર ગહન અભ્યાસ તેમજ ચિંતન કરી સમ્યક જીવનશૈલી, રાજયોગ એવં જૈન દર્શન શૈલી ઉપર ટીવી સિરીઝ, ટોક શોમાં પણ આપના કાર્યક્રમ રજૂ થઈ રહ્યા છે. આપ બ્રહ્માકુમારી વિદ્યાલયના રાજયોગ શિબિર, તણાવ મુક્ત સંચાલન, યુવા સશક્તિકરણ, નારી સશક્તિકરણ, સંપૂર્ણ ગ્રામ વિકાસ
વગેરે જેવા વિષયો ઉપર ખૂબ સુંદર પ્રવચન કરી રહ્યા છો. આપ યુવા પ્રભાગ તેમજ ગ્રામ વિકાસ પ્રભાગના એક સુંદર વક્તા પણ છો. આપ મેધાવી, યશસ્વી તેમજ તપસ્વી આત્મા છો. એવી શ્રેષ્ઠ હસ્તી આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. આપણે એમને સાંભળીશું ખૂબ ધ્યાનથી અને એકાગ્રતાથી. આપણે જેમ મૌનમાં છીએ એ જ રીતે આપણા મોબાઈલને પણ આપણે મૌનમાં કરી દઈશું તો ચોક્કસ એનો આનંદ આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીશું. બ્રહ્માકુમારી રાજયોગિની ગીતાબેન. સ્ટેજના સર્વ મહાનુભાવોને નમ્ર નિવેદન, આપ સર્વ નીચે આપનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લેશો. ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति. शिक्षक मूल्य प्रशिक्षण शिविर में आप सभी ऐसे कौन कौन हैं जिन्होंने लास्ट ईयर भी पार्टिसिपेट किया था और एक उससे पिछले साल भी किया था? ओके, माना लगातार भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. और बहुत बड़ा टास्क होता है जब किसी टीचर को पढ़ाना हो. टीचर तो स्वयं पढ़ाने वाले हैं और हम टीचर्स को क्या पढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें हम सिर्फ शेयर करेंगे. आप ऑलरेडी बहुत अनुभवी हैं और ट्रेंड है. अनेक बच्चों को, युवाओं को ज़रूर आपने पढ़ाया है, पढ़ा रहे हैं और बहुत से फील्ड के आपके पास अनुभव है. लेकिन यहाँ पर सिर्फ यही कुछ बातें हमें सीख करके आगे के हमारे जीवन में, हमारे ड्यूटी में कुछ इस तरह की चीज़ें जो पहले आपके जीवन में दिक्कत, मुश्किल का अनुभव कराती थी. जैसे अभी अभी यहाँ से सर बता रहे थे कि थक जाना है ना, कुर्सी पर बैठ के हाश, बच्चों से तंग हो जाना, है ना, 2-3 बातें जो सर ने यहाँ से कही. तो समाधान भी उन्होंने दिया कि जैसे मेरा बच्चा है, चाहे वो कैसा भी व्यवहार करता है, गंदा सा है और सामने आया तो हम उसको ठीक ठाक कर देते हैं, लेकिन उससे हम कभी परेशान नहीं होते. हम कहते हैं कि नहीं, ये मेरा है. ये बहुत बड़ी भावना है और ये तो आप सभी ने अपने जीवन में किया ही है. हम शुरू में एक एक्सरसाइज करेंगे. आप के पास, सबके पास नोट पेन है ना? ओके. 10 ऐसे लोगों के नाम लिखिए जिनको आप जानते हैं. दिन में, सप्ताह में, कभी भी मिलते हैं. 10 लोगों के नाम लिखिए और उनकी एक एक खूबी भी लिखिए. एक कोई उनकी खासियत, खूबी. 10 नहीं हो तो 5, 10 से तो ज़्यादा ही होता है वैसे, पर 10 लोगों के नाम लिखिए जिनको आप ठीक से जानते हैं. ऐसे काम नहीं पूरा करेंगे, जिनको आप जानते हैं और कहना चाहेंगे इनके अंदर ये खूबी है, मैं जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, जानती हूँ. ऐसे केवल 2 मिनट में, 1 मिनट में आपको लिखना है. किसी दूसरे को नहीं देखना है, क्योंकि वो किसको जानते, आप किसको जानते हैं, ऐसा अलग अलग है ना. हाँ, पड़ोस वाले को भी आप जानते होंगे, उनका भी नाम लिख सकते हैं. जो आपके बगल में बैठा है उसका भी नाम लिख सकते हैं.
5 हो गए? 5। बिल्कुल हम अपने घर के लोगों के नाम लिख सकते हैं, बहुत बड़ा टास्क नहीं है। हो गया? आपका पेपर कोई देखने वाला नहीं है, मुश्किल में मत पड़िए, आपके पास ही रहेगा वो। आप फाड़ के फेंक भी सकते बाद में, किसी को देखने का नहीं है, आपको मुझे देना नहीं है इधर। आपके हस्बैंड, वाइफ, बच्चा, मम्मी, पापा, किसी का भी। ओके, सिर्फ नाम लिखिए, खूबी मत लिखिए। चलिए, नाम हो गया? नाम हो गया, अच्छा। मतलब खूबी लिखने में तकलीफ हो रही थी। ओके, अच्छा। अगर मैं कहूं कि खूबी छोड़ दो, उसकी कोई माइनस पॉइंट, वो जरा लिख दीजिए। उनमें क्या कमी आपको नजर आती है, जिससे आपको कभी कभार थोड़ी तकलीफ होती है? कभी आप बोलते भी होंगे उनको, तुम्हारे में ये ठीक नहीं है, तुम कभी कभी ये करते हो, वो करते हो, जो भी। लिख सकते? लिख सकते? हो गया? हाथ खड़ा कर दीजिए। हो गया तो अच्छा। ऐसा हो रहा था कि एक लिखते लिखते दूसरी खूबी भी याद आ रही थी, या एक कमी लिखते लिखते दूसरी कमी भी याद आ रही थी? ऐसा भी हो रहा था? किस किस को हो रहा था? एक पॉइंट लिखते लिखते सोचते ये भी लिख दूं, है ना, ये तो है ही, ये भी करता है वो, ये तो गड़बड़ है ही, ये भी गड़बड़ है, ऐसा लग रहा था, याद आ रहा था। ओके, अभी बिल्कुल बंद कर दीजिए जो लिखा है वो, कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, कट नहीं करेंगे, बंद कर देंगे। वेरी ऑनेस्टली एक बात बताना, उस लिस्ट में आपने अपना नाम लिखा था? कितने लोगों ने लिखा था? जरा सामने आ जाइए। सामने आ जाइए, सामने आ जाइए। अभी ऐड नहीं करेंगे कोई भी, अभी ऐड नहीं करेंगे। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, प्लीज प्लीज, चीटिंग नहीं करना, बाद में ऐड नहीं करना। सभा में कितने लोग बैठे हैं? सभा में टोटल कितने लोग बैठे हैं? कोई बताएगा कितनी कुर्सियां लगी है? इतनी सारी कुर्सियों में से इतने लोग खुद को जानते हैं, और बाकी सब इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। और आप सब ने अपनी खूबी भी लिखी? जो खड़े हैं उनसे मैं पूछ रही हूं, खूबी भी लिखी, कमी भी लिखी? कमी भी लिखी। थैंक यू सो मच। बैठिए बैठिए। एक बार कुछ दोस्तों का ग्रुप अफ्रीका के जंगलों में घूमने गया था। बहुत सारी फोटोज निकाली, तब तो वो पुराने वाले कैमरा होते थे। घर पे आके प्रोसेस किया। प्रोसेस करने पर सबको बड़ी तकलीफ हो रही थी, क्योंकि वो 11 लोग गए थे, लेकिन फोटो में 10 ही थे।
बहुत परेशान हो रहे थे, किसको छोड़ के आ गए हम, कौन गुम हो गया। अच्छी तरह से सारी तस्वीरें देखने के बाद पता चला किसी में कोई गुम है, किसी में कोई गुम है। तो समझ में ही नहीं आ रहा था आखिर गुम कौन हुआ। कौन हुआ था गुम? क्योंकि कोई तो एक फोटो खींच रहा था ना। जीवन में जितना हम औरों को जानते हैं, जितना हम औरों को ठीक करने की सोचते हैं, जितना हम औरों से सुख पाते हैं, जितना हम औरों से परेशान होते हैं, उसमें का थोड़ा सा टाइम भी खुद को समझने में, खुद को ठीक करने में, खुद से कब कब क्यों परेशान होते हैं उसको जानने में लगा देंगे तो बहुत सारी तकलीफें खत्म हो जाएगी। और सर्वश्रेष्ठ शिक्षक, दुनिया में बहुत आदर्श शिक्षक हुए हैं, गुरु शिष्यों की कई जोड़ियां भी विख्यात है, परंतु सर्वश्रेष्ठ शिक्षक वही होता है जो अपने आप को पढ़ाता है। और किसी ने कहा है कि दुनिया में अगर खुद को मैंने ठीक कर लिया, खुद को मैंने पढ़ा लिया, खुद को मैंने सुधार लिया, तो बहुत बड़ा आत्मसंतोष प्राप्त होगा कि इतनी बड़ी दुनिया में से एक बदमाश कम हो गया। सारी दुनिया में बहुत सी कमियां, हम बातें सुनते हैं, कलयुग है, अत्याचार, दुराचार, झूठ, फरेब, हिंसा, नफरत, धोखेबाजी, कई सारी चीजें हो रही है। और हम चाहते नहीं है कि ये सब हों, लेकिन ये मिटाना ये भी मुश्किल लग रहा है। लेकिन मुश्किल क्यों लग रहा है? क्योंकि हम औरों में मिटाना चाहते हैं, तब तो मुश्किल लग रहा है। लेकिन हर एक को खुद में मिटाना है तो वेरी सिंपल। और खुद में जो भी चेंज करना है, ब्रह्मा कुमारीज इस वर्ष को ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज के रूप में मना रहा है, सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष। तो परिवर्तन तो एक प्रक्रिया है, हमेशा से चलता है। हम बच्चे थे, बड़े हुए, बुजुर्ग होंगे, समाप्त हो जाएंगे। परिवर्तन शरीर में भी होता है, परिवर्तन दुनिया में भी हो रहा है, प्रकृति में परिवर्तन होता है। पानी भाप बनता है, भाप से बादल, बादल से फिर पानी सागर में पहुंचता है। सब चीज बदलती ही रहती है। परिवर्तन संसार का नियम है, ये हम बोलते हैं ना। लेकिन सकारात्मक परिवर्तन क्या है कि जो चीजें परमात्मा की रची हुई सृष्टि में बनाई गई थी, जैसे कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसके साथ एक मैनुअल, एक गाइड भी साथ में आता है ना, कि इसको आप ऐसे कनेक्ट करेंगे, ऐसे ओपन करेंगे, इस तरह से फिक्स करेंगे, अगर कभी खराब हो जाए तो ये करेंगे, इसके लिए ये स्विच दिया हुआ है, सब कुछ। होता क्या है कि जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट लाते हैं तो हम बहुत खुशी खुशी से उसको फटाफट जोड़ करके यूज करना शुरू कर देते हैं। और वो बॉक्स भी होता है ना, एक तरफ पड़ा रहता है। और जब तक वो नया होता है सामान, वारंटी गारंटी पीरियड में वो ठीक ही चलता है अमूमन। और जिस टाइम कभी वो खराब होता है, सबसे पहले क्या याद आता है? वारंटी कार्ड कहाँ पड़ा है, कौन सी शॉप से खरीदा था, उसका एड्रेस कहाँ है। और तब तक क्या होता है, एक दो दिवाली चली गई होती है, वो बॉक्स भी रद्दी में चला गया होता है, और वो गारंटी वारंटी कार्ड भी नहीं मिलता। वो बुक तो हमने कभी पढ़ी ही नहीं होती है। कितने लोग कोई प्रोडक्ट खोलते तब पूरी बुक पढ़ते हैं, बताओ? नहीं पढ़ते। तो कंपनी ने वो बना के जरूर दी होती है हर एक के साथ, हर प्रोडक्ट के साथ, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं।
और जब तकलीफ में आते तब फिर हम कोई ना कोई रिपेयर करने वाले को ढूंढते हैं। ठीक वैसे ही परमात्मा के द्वारा बनी हुई सृष्टि या परमात्मा के द्वारा दिए हुए जीवन की भी कुछ तो गाइडलाइन होगी कि नहीं। अगर उस गाइडलाइन को हमने पढ़ा नहीं और जीना शुरू कर दिया, उस प्रोडक्ट को यूज करना शुरू कर दिया, उस प्रोडक्ट को जगह जगह हमने मूव भी किया, तो आखिर में जरूरत किसकी पड़ेगी? जब उस प्रोडक्ट के साथ हम ठीक से जी नहीं पाएंगे, काम नहीं ले पाएंगे, तो जरूरत किसकी पड़ेगी? उस गाइड की, उस ओरिजिनल मैनुअल की। और उस मैनुअल को कहते हैं वैल्यूज। और वो गाइड हम सबको परमात्मा ने दिया है, वो बुक हम सब के पास है, लेकिन हमने उसको पढ़ा नहीं है। तो यही प्रयास है कि परिवर्तन उस दिशा में हो जो ओरिजिनल गाइडलाइन थी, जो उस वस्तु का मूल स्वरूप था, उस तरफ उसको ले जाना, ये है परिवर्तन। बाकी तो परिवर्तन नेगेटिव तरफ तो बहुत कुछ हुआ है, ये तो हम जानते ही हैं। किसी जमाने में बच्चे उठकर माता पिता को चरण स्पर्श करते थे, है ना। किसी जमाने में बहुएं तब तक नहीं सोती थी जब तक उसकी सास को नींद नहीं आ जाए, तब तक वो उसके पैर दबाती थी। अब तो कितना परिवर्तन है, कहने की कोई जरूरत ही नहीं। एक बार किसी के घर में एक पढ़ी लिखी बहू आई, तो सोचा कि अब ये काम करेगी नहीं करेगी, है ना। तो पति ने कहा कि नहीं, अपन कुछ ट्रिक करते हैं, वो काम करने को मजबूर हो जाएगी। तो सवेरे सवेरे पति ने उठ के झाड़ू पकड़ा और वो सफाई के लिए आया। तो उसकी माँ ने, माना सास ने बोला, नहीं 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 बेटा, तू कैसे झाड़ू मारेगा, झाड़ू तो मैं मारूंगी। बेटा कहते नहीं नहीं माँ, तू कैसे झाड़ू मारेगी, झाड़ू तो मैं लगाऊंगा। ये दोनों ही इसलिए कर रहे थे कि वो बोलेगी कि नहीं नहीं झाड़ू तो आज से। तो बहू आई बाहर, इन्होंने समझा कि हमारी ट्रिक काम कर गई, आवाज सुन लिया। वो बाहर आके कहते नहीं नहीं प्लीज झगड़ा मत कीजिए, ऐसा करिए 15 दिन आप लगा लो, 15 दिन आप लगा लो। देखिए कितना परिवर्तन है। तो परिवर्तन तो बहुत सी चीजों में आया है ना। कभी हम जितने रुपये में 1 तोला सोना खरीदते थे, आज उतने रुपये में 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं आता। देश जब आजाद हुआ तो 27 पैसे का पेट्रोल मिलता था, और आज हमारे राजस्थान में 122 रुपए का पेट्रोल मिलता है 1 लीटर। परिवर्तन तो वहां भी आया है। परिवर्तन क्राइम्स में भी आया है। कितने अपराध के ग्राफ बढ़ते जा रहे हैं, कितने अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। किसी जमाने में किसी ऑफिस में जाकर कोई व्यक्ति कहता था साहब मेरा काम कर दो, और खुश होके जब उसका काम हो जाता था तो वो उस अधिकारी को कुछ रुपये देना चाहता था। साहब आपने बहुत जल्दी मेरा काम कर दिया, मेरा थोड़ी सी भेंट स्वीकार कर लो। तो वो अधिकारी कहता था नहीं नहीं नहीं, ये ऊपर का पैसा मैं नहीं ले सकता, सरकार मुझे पगार देती है और ऐसा ऊपर का पैसा लूंगा, पीछे मुझे भी, मेरे भी बाल बच्चे हैं, उनके संस्कार खराब हो जाएंगे, मैं घूस नहीं लेता। और आज अगर वैसे ही किसी ऑफिस में चले जाएं और अगर न दिया जाए कुछ, तो कहते मेरे भी पीछे बाल बच्चे हैं, मेरा काम कैसे चलेगा। पगार में होता ही क्या है ना। वो भी एक परिवर्तन है। तो परिवर्तन तो बहुत दिशा में आया है। कभी वस्त्र हुआ करते थे शरीरों को ढकने के लिए, लेकिन आज वस्त्र हो गए हैं हर अंग का शेप कैसे दिखा सके उसके लिए।
तो परिवर्तन की दिशा हमें तय करनी होती है कि किस तरफ बदलाव को ले चलना है। युगों से हमारी प्रार्थना रही है, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतम गमय। हम चाहते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर चले, असत्य से सत्य की ओर चले, और जो ये नश्वर चीजें हैं, मृत होने वाली चीजें हैं, उससे अमर रहने वाली चीज, शाश्वत रहने वाली चीज, उसकी तरफ चले। तो इसी प्रार्थना को सही मायने में हम सबको भी अपने जीवन में लाना चाहिए। क्या हम उसी सत्व की तरफ चलने के लिए तैयार है? उन्हीं शाश्वत चीजों को समझने के लिए तैयार है? तैयार है? जरा हाथ खड़े करें। अमरत्व, शाश्वत चीजें, सत्य चीजें, संसार का परम सत्य, उसको जानने के लिए तैयार है? चाणक्य ने एक बात कही थी। चाणक्य भी एक बहुत बड़े शिक्षक रहे जिन्होंने चंद्रगुप्त को खोया हुआ राज्य सिखा करके वापस दिलाया। उन्होंने कहा था कि जीवन में जब एक बार वो जा रहे थे चंद्रगुप्त, तो उनको रास्ते में कांटा चुभा, तो उन्होंने उस कांटे को निकाल के फिर चलना शुरू किया। तो उन्होंने कहा, रुको, सिर्फ पैर से कांटा मत निकालो, कांटे के उस जाड़ को वहां से निकालो और दूर फेंको, तब आगे बढ़ो। मैंने अपनी प्रॉब्लम को खत्म कर दिया, इतना ही काफी नहीं है। आप एक शिक्षक है तो सबसे बड़ा आदर्श शिक्षक वो होता है कि जो उस समस्या की जड़ को समाप्त करे, वो समस्या किसी और को भी फेस न करनी पड़े। पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जिनको महामना कहते हैं, उन्होंने जब देखा कि भारत के युवा अंग्रेजों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, अंग्रेजी से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं और अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि हमारे देश में अच्छे एजुकेशन के इंस्टीट्यूट नहीं है, तो बच्चे बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, और जब बाहर से पढ़ के आते थे तो क्या होता था आज तो हम सब जानते ही है। तो उन्होंने कोशिश की कि भारत में ही मैं सबसे अच्छा एक विद्यालय, विश्वविद्यालय बनाऊं, और उन्हीं की देन है BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। उसके लिए उनको धन नहीं मिल रहा था, जमीन नहीं मिल रही थी, लेकिन उन्होंने खुद कोशिश की। वो तो एक शिक्षक थे, लेकिन उन्होंने इतना दूरगामी सोचा कि मेरे देश के बच्चे मेरे ही देश में इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, हर प्रकार की शिक्षा एक जगह मिले, और आज भी BHU कैंपस दुनिया की सबसे बड़े यूनिवर्सिटी कैंपस में से एक है। जब वो हैदराबाद के निजाम के पास पैसा मांगने के लिए गए, डोनेशन मांगने के लिए गए, तो उन्होंने गुस्से में उनके ऊपर जूती फेंक दी, अपनी जूती फेंक दी थी निजाम ने उनके। उन्होंने खुशी खुशी वो जूती उठा के चले गए, और एक दिन के बाद में उन्होंने बाजार के बीच में जूती की नीलामी रखी कि निजाम की जूती की नीलामी हो रही है। तो उस समय उसमें से उनको 1000 रुपया मिल गया था, जो उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। और जब ये समाचार निजाम को मिला तो वो बहुत खुश होके उन्होंने और 1000 रुपया दे दिया उनको। कहने का मतलब कि इस तरह के लीडरशिप वाले भी टीचर हुआ करते थे, जिन्होंने केवल ये नहीं सोचा कि मैं अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर लूं, मैं किसी पद को प्राप्त कर लूं, मेरे बच्चे पढ़ लेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को भी इस तरह का एक आदर्श संस्थान मिले, उसके लिए उन्होंने जी जान से मेहनत की। जब वो बनारस के नरेश के पास गए, काशी नरेश, कि मुझे जमीन दो, तो उन्होंने मजाक उड़ाया उनका कि ठीक है, जमीन तो मेरे पास बहुत पड़ी है, लेकिन सवेरे से शाम तक जितना पैदल चल लोगे उतनी जमीन आपको दे देंगे। उन्होंने पूरी मेहनत करके और इतना बड़ा एरिया कवर किया जो आज हम देख पा रहे हैं, इतना बड़ा विश्वविद्यालय। तो कोई भी शिक्षक
जब लीडर बन के काम करना शुरू करता है तो सबसे पहले परिवर्तन की शुरुआत होती है। कोई करे फिर मैं करूं तो मैं लीडर नहीं हूं। जब भी कभी सिस्टम की बात आती है तो हम क्या कहते हैं, बदलाव तो लाना चाहिए, परंतु कोई करेगा तो हम भी करेंगे। कौन कर रहा है अभी तक? सब तो इसी में लिप्त है, सब तो इसी में ही लगे हुए हैं, तो हम भी वैसा ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले परिवर्तन के लिए आवश्यक होता है इनिशिएटिव लेना, खुद को लीडर बनाना, तब चेंज की शुरुआत होती है। एक बार एक समुद्र के अंदर वॉरशिप और जा रहा था। तो वॉरशिप जो होता है बहुत बड़ा होता है, तो उसमें उन्होंने डायरेक्शन सेट किया और काफ़ी अच्छे से दिशा और सब तय हो गया और फिर चलना शुरू हुआ। पहले बहुत बड़े तूफान में उलझ गया था, तो जैसे ही सेट हुआ और जिस दिशा में चलना शुरू हुआ, सामने से उसी दिशा में एक लाइट दिखाई दी। तो जो कैप्टन था उसने कहा देखो देखो क्या है। तो जब दूरबीन से देखा गया तो लगा कि उस सामने से उसी दिशा में लाइट है, माना कोई और शिप आ रहा है, तो हमें अपने शिप की दिशा को बदलना पड़ेगा। पर कैप्टन था, उसने कहा कि इतना बड़ा वॉर शिप है और मैंने ऑलरेडी अभी अभी अपनी दिशा को सेट किया है, इतने बड़े को मूव करना मुश्किल है। ऐसा करो, वहां मैसेज भेजो कि आप जो है 20 डिग्री अपने जहाज को चेंज कर लो दिशा, हम नहीं चेंज कर सकते हैं। तो वहां मैसेज गया। जब मैसेज गया तो वहां से वापस मैसेज आया कि हम चेंज नहीं कर सकेंगे, आपको ही चेंज करना पड़ेगा। अब वो कैप्टन था, उनको और गुस्सा आया थोड़ा सा, कैसे नहीं कर सकते हैं, मैं इतनी बड़ी सेना का वॉरशिप चला रहा हूं और मैंने मैसेज दे दिया कि आप थोड़ा सा चेंज कर लो, तो वो मुझे क्यों कह रहे बदलने को। अब उसने ठान लिया दोबारा मैसेज करो, आई एम कैप्टन सो एंड सो, और मैं आपको ऑर्डर करता हूं कि आप चेंज कर लो, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। वहां से फिर से मैसेज आया कि सर आप जो भी है हम आपका रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन चेंज तो आपको ही करना पड़ेगा। और लास्ट में उन्होंने कारण क्या बताया, सर वी आर स्पीकिंग फ्रॉम लाइट हाउस। अब किसको चेंज करना पड़ेगा? अब किसको चेंज करना पड़ा? खुद को। तो लाइट हाउस पे क्या बोलते गुजरात में, दीवा दांडी, वहां से वो लाइट आ रही थी, लेकिन वो ये समझ रहा था कि वो क्यों नहीं बदले, मुझे क्यों बदलने के लिए कह रहे। उसमें उनका 2 घंटा चला गया, बजाय उसके इतनी देर में तो वो मूव करके कहां से कहां निकल जाता। हमारी जीवन में भी क्या होता है, हम हमेशा अपेक्षा रखते हैं सिस्टम बदले, सरकार बदले, ऑफिसर बदले, या सर अभी बता रहे थे ना, मेरी स्कूल बदल जाए, सिटी चेंज हो जाए, लेकिन क्या नहीं बदलना पड़े, क्या नहीं बदलना पड़े, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू सिस्टम, मुझे न बदलना पड़े। यहां से ही रुक जाती है हमारी यात्रा, क्योंकि हम अपेक्षा करते हैं कि कोई और बदले। तो जब परिवर्तन करना है तो मुझे करना है, लीडरशिप लेनी है, बदलाव लाना है तो जड़ से लाना है। ये 2 बातें हैं। तीसरी एक चीज, हम सब अपने जीवन में जो बातें वर्णन करते हैं बच्चों के सामने टेक्स्ट बुक के माध्यम से, उन बातों का थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस जब मेरे पास होगा, तो वो एक्सपीरियंस की जो कहानी है वो आपके बच्चों को जब आप सुनाते हैं, तो सबसे ज्यादा बच्चों को वो कहानी याद रहती है, जितना कि वो मैसेज भले याद न रहे। राइट?
कहानी आपकी, एग्जाम्पल आपका काम आता है, न कि आपकी बताई हुई शिक्षा। जब भी आप कोई कहानी सुनाते हैं तो सारा क्राउड बड़े ध्यान से सुनता है, और जब आप केवल शिक्षा दे रहे होते हैं तो बहुत से लोगों की आंखें बंद भी हो जाती है। तो क्यों ना हर चीज जो मुझे बतानी है उसकी एक कहानी मेरे जीवन में हो जाए, क्यों ना उसमें का अनुभव मैं अपने जीवन में खुद कर लूं। ये भी मेरे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए कि हर मूल्य जो मुझे पढ़ाना है उसका एक एक्सपीरियंस मेरे पास भी जरूर होना चाहिए। और दूसरा जो कहा जाता है कि सबसे बड़ा जो टीचर होता है वो जीवन में समय होता है। समय जैसा महान कोई शिक्षक नहीं। जो चीज समय सिखाता है वो शायद कोई भी नहीं सिखा सकता। हैरी पॉटर जो दुनिया की बहुत प्रसिद्ध स्टोरी है, जो काल्पनिक है, जिसमें कोई भी सत्यता नहीं है, लेकिन दुनिया की बेस्ट सेलर बुक भी वो बनी और दुनिया की 24 लैंग्वेजेस में हैरी पॉटर की फिल्म बनी। डू यू नो द राइटर ऑफ हैरी पॉटर सीरीज? हैरी पॉटर की कहानी किसने लिखी है? शायद हम में से बहुत से लोगों ने हैरी पॉटर देखी होगी। बच्चे तो सभी देखते हैं, एक जमाना था तब तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थी। तो हम उसके लेखक को नहीं जानते, लेकिन उसकी लेखिका थी J.K. रोलिंग। J.K. रोलिंग एक ऐसी महिला थी जो इंग्लैंड के एक छोटे से टाउन में रहती थी, सिंगल मदर के रूप में अपने बच्चे को पाल रही थी, और धीरे धीरे उसके पास कोई जॉब नहीं रही। और एक समय ऐसा आया था कि जब 6 महीने का रेंट भी वो अपने घर का नहीं भर पाई थी, और रोज आकर के उसका लैंडलॉर्ड उसके पास धमकी देता था कि मेरा घर खाली करो, नहीं तो मुझे रेंट दो। अब उसने सोचा कि अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। कोई उसको पैसा देने को तैयार नहीं था, पैसा कुछ था नहीं, जॉब थी नहीं। उसने याद किया कि मैं ऐसा क्या काम कर सकती हूँ जो किसी को मैं एंटरटेन करूँ या किसी को पसंद आए। उसने बहुत सोचा, बहुत सोचा। फिर उसको याद आता है कि जब मैं छोटी थी तो मैं कहानियां सुनाया करती थी, और वो हमारे सब पड़ोस के बच्चों को सबको बड़ी अच्छी लगती थी। और उसी एक बात को लेकर उसने कहानी लिखना शुरू किया। उसके पहले वो कोई बड़ी राइटर नहीं थी, और कहानी लिखी काल्पनिक जगत की, जादुई की, तिलिस्म की। और जब वो लेकर के गई, एक जगह गई, 2 जगह गई, कम से कम 12 जगह पर वो गई, उसकी कहानी को पब्लिश करने वाला कोई नहीं मिल रहा था। एक संपादक ने दया करके उसकी स्टोरी को पब्लिश करने के लिए अपने बुक में डालने का बताया। उसके बाद जब वो पब्लिश हुई, उसकी कहानी तो बहुत सफलता की है। फिर पहली एडिशन, दूसरी एडिशन, चौथी बुक जब उसकी सीरीज में आ गई, उस टाइम इंग्लैंड की महारानी से ज्यादा इनकम टैक्स पे करने वाली महिला J.K. रोलिंग बनी थी। केवल एक खूबी, वो जब उसने अपने अंदर से खोजी, और छठी बुक जब पब्लिश हुई थी तो सारी दुनिया में जब अनाउंस हुआ कि दिस इज द लास्ट बुक ऑफ हैरी पॉटर सीरीज, तब दुनिया में 24 आवर्स पहले से लोग बुक स्टोर के बाहर लाइन लगा के खड़े थे कि वो बुक कहीं खत्म ना हो जाए, इतनी पॉपुलैरिटी। मैं जो बात कहने जा रही हूं वो ये है कि अच्छा शिक्षक भी वही है जो बच्चे के अंदर की पोटेंशियल को जागृत करे, जिसको कहा जाता है केवल किताबी ज्ञान नहीं, लेकिन हुनर या स्किल का ज्ञान। और ये स्किल जब तक हम बच्चों में डेवलप नहीं करेंगे तब तक हम सफल कभी नहीं कह सकते हैं। अपनी शिक्षा नीति को भी मैं तब तक सफल नहीं कहूंगी जब तक कि हम बच्चों, जो हमारे गुरुकुल में हुआ करता था, गुरुकुल में जब दुनिया में इंग्लैंड और अमेरिका वाले
एजुकेशन की पहली बुक लिख रहे थे। पहला स्कूल जब इंग्लैंड में खुला था तब भारत में लगभग 30,000 से ज्यादा गुरुकुल थे और उनमें 60 से ज्यादा विषय पढ़ाए जाते थे। और वो सारे विषय कैसे थे, जिससे बच्चा जब गुरुकुल से बाहर आता था तो तुरंत वो अपने पैरों पे खड़ा होता था। उसको नौकरी के लिए जगह जगह जाने की कोई जरूरत नहीं थी। तो ये जो हुनर लक्षी शिक्षा थी वो आज नहीं है, लेकिन हम बच्चों को इस हुनर के प्रति जागृत करें और उसके लिए आपको बच्चों के नजदीक आना पड़ेगा। आपको बच्चों के साथ बैठना पड़ेगा, बच्चों के प्रोफाइल को नजदीक से समझना पड़ेगा। ये जो मेहनत जो कर लेता है ना, वो वास्तव में बहुत बड़ा दुआओं का पात्र बनता है। ये मैंने अपने जीवन में महसूस किया है। स्कूल में जितनी भी इतर प्रवृत्तियां होती है उसका लक्ष्य तो यही होता है कि बच्चों की कलाएं जो है वो उजागर हो, लेकिन बहुत बार देखा गया है कि उसमें मेहनत नहीं की जाती है। ठीक है बेटा, यूट्यूब पे देख लेना, डांस सीख के आ जाना, गाना किसी का सुन लेना, 2-4 बार और करके आ जाना। अभी इतनी मेहनत हम सभी नहीं करते। अगर थोड़ी सी मेहनत इस बात की भी करें कि बच्चों के अंदर क्या गुण है, क्या कला है, उसको ढूंढने में उसकी मेहनत करें। और देखिए, जिंदगी में अगर किसी का जीवन आपने बना दिया ना, तो ये दुआएं बहुत बड़ी होती है। शिक्षक अपने व्यवसाय से बहुत बार खुश नहीं होते हैं। कहते क्या है, पढ़ लिख के हम शिक्षक ही रह गए। हमारे नीचे पढ़ने वाले किसी कंपनी के सीईओ बन गए, कहाँ जाके कुछ और बन गए, और हम अभी तक आगे 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 के बच्चों को पढ़ा ही रहे हैं। लेकिन जो भी जहां तक भी पहुंचा है, लेकिन उसको बनाने में आपका जितना भी योगदान है, ये उस कंपनी को चलाने से भी कहीं ज्यादा का है। तो अपने व्यवसाय से हमें बहुत प्राउड फील होना चाहिए, तभी हम खुशी से अपने कार्य को करेंगे। किसी ने कहा है कि सफलता मिलेगी तो खुशी मिलेगी, लेकिन हम ये कहते हैं कि खुशी से कोई काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। तो जैसे मैं राजस्थान के एक रूरल एरिया में काम करती हूँ, तो मेरे को कभी कभी कई लोग ने बोला कि क्या आप ऐसा रूरल एरिया में काम करते हैं, छोटे छोटे एरिया है, बहुत राजस्थान है वो पिछड़ा इलाका भी है। जब हम शुरू में गए तो ऐसे लगा कि शायद काले पानी की सजा मिली हो। तो बहुत डिफरेंस था यहाँ से राजस्थान से, गुजरात से राजस्थान में। लेकिन मुझे भी ऐसा लगा कि अगर मुझे यह जगह, यह क्षेत्र कार्य करने के लिए मिला है, तो मुझे यहाँ पर ही कुछ न कुछ करके दिखाना भी है, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है। और हमने उसी क्षेत्र में अलग अलग एक्टिविटी के द्वारा आज अपने सेंटर को खड़ा किया। तो हम ये जुगाड़ में न रहे कि हम कब स्थान बदलेंगे, हम कब अपना दूसरा जॉब करेंगे। जैसे आजकल बहुत से लोग कर ही लेते हैं, साइड बाय साइड बिजनेस भी कर लेते हैं, फिर उनका ध्यान स्टडी में कितना रहता है ये भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो इस आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर अगर आपको ये मूल्य शिक्षा के द्वारा ट्रेनिंग मिल रही है, कुछ जानकारी मिल रही है, तो मैं इतना जरूर कहती हूँ कि जिंदगी में जो काम धन से नहीं होता, वो काम दुआओं से होता है। और इसलिए दुआओं का धन किसी की जिंदगी को संवारने से, अपने काम को ऑनेस्टी से करने से और कार्य करते समय खुश संतुष्ट रहने से ही मिल सकता है। जो काम आप खुशी से नहीं करेंगे, वो काम किसी और को भी खुशी नहीं दिला सकता। अगर आप भोजन भी बनाते हो, खुशी से भोजन बनाते हो, तो उस भोजन को ग्रहण करने वाले को भी स्वाद मिले न मिले, लेकिन खुशी जरूर मिलती है। एम आई राइट? अगर किसी के घर में आप जाते हैं, बहुत सादा सा भोजन बनाना जानते हैं वो, और उन्होंने उतना ही आपको बना के दिया, लेकिन दिया बड़े प्यार से, है ना।
जो हम खाते हैं आप भी खाओ, आओ, आप तो हमारे मेहमान है, बड़े प्यार से दिया तो कितना सुकून मिलता है। और एक किसी के घर में बहुत सी वैरायटी बनी थी, लेकिन आपको कह दिया जाए ठीक है वहाँ हमारा आदमी है, आप जाओ और वो आपको खिला देगा, खा लो। उसमें कितना फर्क है। जो अपनत्व के साथ आपको कोई प्यार से बाजू में बैठ के खिलाता है तो कितना अच्छा लगता है। ठीक वैसे ही जो भी मेरी ड्यूटी है उसको मैं उतने ही अपनत्व के साथ में प्यार से भर के करती हूँ तो जरूर वो चीज आपके जीवन में खुद को सुकून देने वाली और अन्य को भी सुकून देने वाली साबित होगी। जैसे लाल बहादुर शास्त्री की बात आपने सुनी है कि वो भी एक शिक्षक थे। पहले शिक्षक होते हुए उन्होंने जो शिक्षा का कार्य नहीं कर पाए थे वो उन्होंने बाद में प्रधानमंत्री होते हुए भी किया। कि उन्होंने जब देखा कि देश में अकाल है, अमेरिका से गेहूं आता था सड़ा हुआ और इस तरह का जो वहाँ जानवर भी नहीं खाते थे, देश के लिए आता था, खाना पड़ता था, उन्होंने कहा हम आपका गेहूं ऐसा सड़ा हुआ नहीं लेंगे। अमेरिका ने धमकी दे दी थी कि ऐसा नहीं लोगे तो हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, आपके देश के लोग भूखे मरेंगे। बोले कुछ भी नहीं होगा, हम ऐसा गेहूं खाएंगे तो हमारे देश का आत्मसम्मान कम हो रहा है, हम नहीं लेंगे। और उन्होंने देश को पढ़ाना शुरू किया। क्या किया कि हम हर सोमवार को व्रत करेंगे। उन्होंने स्वयं को व्रत में रखा, हर सोमवार का व्रत खुद ने भी किया। उन्होंने चावल खाना छोड़ दिया। उनके घर में काम करने के लिए आता था एक काम करने वाला, उनकी उन्होंने छुट्टी कर दी कि अगर देश को जरूरत है तो मैं इस बात की बचत करता हूँ, मुझे चलेगा। उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए टीचर आता था, उसकी भी उन्होंने छुट्टी कर दी। तो उन्होंने कहा कि आपके बच्चे इंग्लिश नहीं पढ़ पाएंगे, इंग्लिश बहुत मुश्किल विषय है। तो उन्होंने कहा कि अगर अंग्रेजों को हिंदी दे दो तो क्या वो पढ़ पाते हैं? तो मेरे बच्चे अगर इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो मेरी भाषा है हिंदी, वो हिंदी में ही काम चला लेंगे। ऐसा करके पहले उन्होंने अपने घर में अपनी लाइफ में चेंज लाया और उसी का असर था कि देश में एक मूवमेंट हो गई और सब ने अपने पैरों पे खाना और देश का गेहूं देश के अंदर उत्पन्न करना शुरू किया। तो ये जो परिवर्तन है कैसे उन्होंने स्वयं के ऊपर आजमा के देखा। आज हम अपने जीवन में छोटी सी भी चीज को त्याग नहीं करना चाहते हैं। और एक चीज मैं कहना चाहती हूं कि दुनिया में बहुत टाइप के काम है। एक काम होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम, ये तो आप सब जानते ही है। आप में से किसी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम तो नहीं है? नहीं, आप तो सभी टीचर है। लेकिन एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम लोग सभी कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? घर की प्रॉब्लम, घर का टेंशन, घर का मूड ऑफ स्कूल में लेके चले जाते हैं। और स्कूल में अगर कुछ डिस्टरबेंस हुआ है, नाराजगी हुई है, थकान हुई है, उसको घर में लेके आ जाते हैं। तो कभी कभी घर वाले परेशान होते हैं, क्या बात है? बोले आज बच्चों ने खूब दिमाग खाया होगा इसलिए आज आकर के हमारा दिमाग चाट रहे हैं। और कभी कभी स्कूल में बच्चे भी समझ जाते हैं कि आज जो है मैडम बड़ी उखड़ी उखड़ी लग रही है, जरूर घर में झगड़ा हुआ होगा सास बहू का या पति पत्नी का। होता है ऐसा। तो एक जगह की प्रॉब्लम को दूसरी जगह ले जाते, दूसरी जगह की प्रॉब्लम को पहली जगह ले जाते। तो हम कहीं पर भी अपना रोल अच्छा प्ले नहीं कर पाते हैं। तो हम जहां है वहां अपना 100% दे, जहां है वहां हम ऑनेस्टली काम करें, उसके ऊपर दूसरी कोई चीज का प्रभाव ना हो। ये कब हो पाता है? जब इस जीवन को भी आप एक खेल की तरह खेलेंगे। जीवन के रोल प्ले करने में जब जैसा रोल है तब आप वैसा रोल प्ले करें। अगर एक रोल को दूसरे रोल में हम मिक्स कर देते हैं तब हम कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। एक व्यक्ति था, वो जीवन भर उसने महाराणा प्रताप का रोल किया, तो धीरे धीरे उसके दिमाग में कुछ असर आ गया। तो वो जहां जाता था अपना भाला लेके चला जाता था, ड्रेस भी नहीं उतारता था। एक बार किसी बस में चढ़ गया,
और भाला ऊपर टिका के खड़ा हो गया, तो कहीं भी कोई जगह की टिकट ना ले, कोई जगह उतरे नहीं। अब कंडक्टर परेशान हो गया कि इसको क्या करे अभी। तो किसी ने कहा कि ठीक है, कोई सुनसान जगह आती है तब मुझे बताना, स्टॉप कर देना बस को, मैं संभाल लूंगा। तो जब सुनसान जगह आई तो बस को स्टॉप करके बोला चित्तौड़गढ़, तो महाराणा प्रताप उतर गए। उस रोल में वो फिट हो गया। ये तो हमें बुरा लग रहा है, लेकिन क्या हम भी स्कूल में आते हैं तो एक मदर के रोल में तो नहीं होते, एक बहू के रोल में तो नहीं होते, एक पत्नी के रोल में तो नहीं होते, उस गुस्से को या उस सिचुएशन को लेकर के तो नहीं आते। जब हम शिक्षक के रूप में हैं तो पूरी तरह शिक्षक होने चाहिए। जब हम घर में हैं तो फादर होने चाहिए, मदर होनी चाहिए। नहीं तो कभी कभी आप घर में भी अगर हेडमास्टर बनने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, होता है ना। आपका बच्चा आपका वेट कर रहा है घर पे कि अभी मेरे पापा आएंगे, अभी मेरी मम्मी आएगी, मैं उसके साथ खेलूंगा, और आप एकदम हेडमास्टर की तरह घर में प्रवेश करते हैं और उसकी आस अधूरी रह जाती है, तो दिस इज नॉट राइट। तो हमें अपने रोल को स्विंग करना भी सीखना बहुत जरूरी है। ये जिसने सीख लिया ना वो सफल होता है। हमारे पास बहुत से शिक्षक ब्रह्मा कुमारी इसके ज्ञान में जुड़े हैं। अभी भी हमारे सामने पुष्पा माता जी बैठे हैं जो हमारे राजेश भाई की मम्मी है, और इन्होंने दोनों ने स्कूल जीवन भर पढ़ाई का काम करवाया और बहुत अच्छे तरीके से, चाहे जहाँ भी ड्यूटी मिली, जो भी मिली, उसमें उन्होंने दिन रात मेहनत करके ऑनेस्टली काम किया। पर आज उसकी रिजल्ट में इनके एक बेटा है वो बहुत अच्छा हमारे यूथ विंग के मोटिवेशन स्पीकर के रूप में और माउंट आबू की सेवाएं देख रहे हैं, और एक हमारे राजेश भाई जो आपकी नेक्स्ट क्लास लेंगे MD रेडियोलॉजिस्ट है। तो जब उन्होंने किसी के बच्चों को तैयार किया तो इनके अपने बच्चों का भी अपने आप एक आदर्श जीवन बना। तो हम कुछ मिस नहीं करते हैं, हम कुछ खोते नहीं हैं। अगर हम कुछ देते हैं, अपना समय देते हैं, अपनी शक्तियां देते हैं, अपना ध्यान देते हैं, तो बदले में हमें भी वो अनेक गुना होकर के मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि दाना खाक में मिलकर ही गुले गुलजार होता है। तो अपने को मिटाना होता है, अपनी हस्ती को भी मिटाना होता है, अपने सुखों को भी त्याग करना होता है, तब जाके उसकी रिजल्ट में गुलजार हो जाता है, पूरे जीवन की बगिया खिल जाती है। तो एक शिक्षक किसी देश का निर्माण करता है, संस्कृति को बचाता है। शिक्षक एक कुम्हार जैसा होता है जो मिट्टी से घड़ा बनाता है, और घड़ा जब बनता है ना तो दोनों हाथों का काम होता है। एक हाथ तो ऊपर से शेप बनाने के लिए उस घड़े के ऊपर लगाने के लिए हथौड़ी रखता है, लेकिन दूसरा हाथ अंदर रखा जाता है जो सपोर्ट करता है कि इतना भी न लग जाए कि घड़ा टूट जाए। तो बच्चों को, जिस किसी के ऊपर भी आप काम करते हैं, उनको दोनों हाथों से सपोर्ट कीजिए। इतना भी मत कहिए कि वो बच्चा घबरा जाए, सदमा पहुंच जाए, टूट जाए, डर जाए और हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाए। और इतना भी केवल सपोर्ट मत कीजिए कि वो आपकी बातों को गौर भी न करे। तो ये दोनों हाथों का माना बैलेंस्ड शिक्षा, बैलेंस्ड जीवन, इसकी शिक्षकों के लिए बहुत महती आवश्यकता होती है। हमने ब्रह्मा कुमारी इसके हमारे सीनियर्स को देखा है, दादी जानकी, जिनके लिए आप सबको पता होगा, जिनको विश्व की सबसे स्थिर मन की महिला का अवार्ड मिला था WHO के द्वारा। दादी जी अपने 104 साल की उम्र तक आध्यात्मिक शिक्षा को पढ़ाना
और सबको पालना देना, आत्मा को सजाना, ये सेवा करती रही। दादी जानकी की एक बात मुझे याद आती है। दादी जी ने, एक बहन कुछ गलती करके आई, हर एक से कोई ना कोई कामकाज में गलती हो जाती है, तो बड़ों का काम होता है समझाना, बताना। तो उन्होंने उस बहन को इतना अच्छी तरह से समझाया कि ये काम गलत है, लेकिन सीधा काम के बारे में नहीं बोला। बोला, बहन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छा काम संभालती हो, लेकिन आज जो तुमने किया है ये काम गलत है। तो दादी जी ने ये कहा कि काम को मैं गलत मानती हूँ, तुमको गलत नहीं मानती हूँ। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप किसी के काम को गलत होने से उस व्यक्ति को ही गलत मान लेते हैं। ये हमें कभी भी नहीं करना है। कोई व्यक्ति गलत नहीं है, लेकिन उनके जीवन में कोई क्षण आता है, कोई दिन आता है जो उसकी कमजोरी उस पर हावी होती है और वो चाहते हुए भी उस कमजोरी से मुक्त नहीं हो पाता है। वो दिन उसका खराब है, वो समय उसका खराब हो सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति खराब नहीं है। तो ब्रह्मा कुमारी की ये आध्यात्मिक शिक्षा से हमने ये समझा कि हर जीवन के अंदर जो प्योर आत्मा है, सोल है, वो बहुत अच्छी है। किसी समय में हम सब की आत्मा बहुत प्योर थी, लेकिन चूंकि ये संसार के चक्र में अनेक युग बीते, बहुत लंबे समय से हमने अनेक जन्म लिए, तो आज हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमी आ चुकी है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमजोरी दिखाई देती है, लेकिन अगर हम उसे उसी प्योर स्वरूप में देखेंगे, उसी आत्मिक स्वरूप में देखेंगे, तो शायद हमको कभी भी किसी से घृणा नहीं होगी, कभी किसी से नफरत नहीं होगी, हम किसी से नाराज नहीं होंगे। और ये शिक्षा जीवन शिक्षा है। हम जब किसी से नाराज हो जाते हैं, तो परमात्मा ने एक बात कही है हमें ईश्वरीय ज्ञान में कि जो नाराज होता है वो राजा नहीं बन सकता, और जो नाराज होता है वो कभी राज को जान नहीं सकता। राज को जानने वाला कभी भी नाराज नहीं होता। तो राज क्या है, उसके पीछे का सीक्रेट क्या है, वो जान लेना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति भीड़ में गाड़ी चला रहा था। तो हम सब जानते हैं कि जब भीड़ में हम फंसते हैं, कहीं पहुंचना होता है, तो सब लोग क्या कर रहे होते, हॉर्न पे हॉर्न बजा रहे होते हैं। तो वो हॉर्न बजाते 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 आगे निकलता जा रहा है, लेकिन एक गाड़ी उसके सामने ऐसी आ गई जो ये कितना भी हॉर्न बजाता है, लेकिन वो गाड़ी वाला आगे निकाल ही नहीं रहा है। न फास्ट चला रहा है, न इसको साइड दे रहा है, न आगे निकाल रहा है। तो ये बहुत इरिटेट होने लगा, बहुत इरिटेट होने लगा। आखिर उसने सोचा कि मैं उतर के एक बार उसको समझा के आता हूँ। उसने गाड़ी रोकी और उतर के उसके पास गया, लेकिन उसकी कार के सामने उसने लिखा हुआ देखा, छोटे अक्षरों में लिखा था डिसेबल्ड। वो कार एक डिसेबल व्यक्ति चला रहा था। तुरंत वो रुक गया कि नहीं, मुझे इसको नहीं बोलना चाहिए। तो उसने तुरंत उसको सॉरी कहा कि मैं बहुत देर से आपको हॉर्न मार रहा था और मुझे इरिटेशन हो रही थी, लेकिन अब मुझे पता चला कि आप डिसेबल है, सॉरी मैंने आपको तकलीफ दी। कार के ऊपर लिखा हुआ डिसेबल तो उसको दिख गया और उसने सॉरी बोल दिया। हमारे जीवन में जो व्यक्ति हमारी परेशानी का कारण बनता है, हमारे रास्ते को रोकता है, क्या उसको हमें डिसेबल मान के क्षमा नहीं करना चाहिए? व्यक्ति के ऊपर तो टैग लगा हुआ नहीं मिलेगा, मिलेगा? किसी के ऊपर टैग लगा हुआ मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। वो टैग पढ़ना किसको पड़ेगा? हमको पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई आपके ऊपर गुस्सा करता है तो क्या वो व्यक्ति बीमार नहीं है? बीमार है कि नहीं है? कौन कौन मानता है कि गुस्सा करना ताकत का काम है? गुस्सा करने से सबको चुप कराया जाता है,
ऐसा कौन मानता है? ताकत का काम है? कौन मानता है? जरा हाथ खड़ा करेंगे। और कौन मानता है कि गुस्सा करना कमजोरी है? कौन कौन मानते हैं? तो जो गुस्सा कर रहा है, क्या उसको हम बीमार भी कह सकते हैं? कह सकते हैं? तो गुस्सा करने वाले के ऊपर क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? गुस्सा। सिंपल तो यही है ना। हम ज्यादातर क्या कह देते हैं? मुझे थोड़ी ना गुस्सा करना था, लेकिन पहले उसने गुस्सा किया और फिर मुझे तो गुस्सा आना ही था, क्योंकि गुस्सा उसने भी किया तो मैंने भी किया। लेकिन किसी एक को बुखार आया है तो क्या हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए या हमें भी बुखार आ जाना चाहिए? करना क्या चाहिए? तो अगर किसी एक को गुस्सा आता है तो हमारा फर्ज क्या है? हमारा फर्ज क्या है? उसको समझने की कोशिश करना और कम से कम अपने आप को गुस्से से बचाना। तो वहां हम उसको डिसेबल मान लें तो अपनी एनर्जी कम से कम हम बचा लेंगे। नहीं तो होता क्या है, एक व्यक्ति की एनर्जी कम है, वो परेशान है, वो गलती कर रहा है, लेकिन साथ साथ क्या होने लगता है, दूसरा भी उसको देख के अपनी एनर्जी भी खराब कर रहा है, वो भी परेशान हो रहा है। और आफ्टर ऑल धीरे धीरे हो सकता है ये चीज 3, 4, 5, 10 लोगों तक चली जाए। गुस्सा आप अपने पियून पे निकाल देंगे, बच्चों पर निकाल देंगे, रास्ते में जाएंगे और किसी पर निकाल देंगे। तो मैनेज करना है अपने गुस्से को, और हम मैनेज क्या करने लग जाते हैं? दूसरों को कंट्रोल करने लग जाते हैं। और यही हमारी जीवन की सबसे बड़ी कमी है कि अगर हमें कंट्रोल करना है तो किसको करना है? अपने माइंड को, अपने आप को समझाना है कि मैं क्यों अपनी एनर्जी को खराब कर रहा हूं। कोई चीज अगर ठीक नहीं है तो एक चीज तो माननी पड़ेगी कि इस दुनिया में सब कुछ तो ठीक है ही नहीं। क्या मैं हर बात में ठीक हूं? मैं हर दिन सेम टाइम पर बराबर उठ जाता हूं? मुझे कभी गुस्सा नहीं आता? मैं कभी किसी चीज को नहीं भूलता? मेरी मेमोरी एकदम 100% प्योर है? नहीं है ना। तो इस दुनिया में सब कुछ तो परफेक्ट है ही नहीं। तो जो है उसको क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। कुल मिला के अगर हमारा माइंड सुलझा हुआ रहेगा तो हमें अच्छे ख्याल आएंगे, क्रिएटिव आइडियाज आएंगे और हम अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। हमारे संबंध भी बहुत अच्छे रहेंगे। इसीलिए किसी ने कहा है कि स्माइल इज ए कर्व लाइन बट इट मेक्स रिलेशन स्मूथ एंड प्लेन। अगर हम स्माइल देते हैं, कोई भी कार्य को हंसते हुए ले लेते हैं, बच्चे ने गलती की, हंसते हुए लिया, अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब की कर लिया, लेकिन आगे नहीं करना है। तो टेक इट इजी, टेक विथ स्माइल, ये एक बहुत बड़ा गुण होता है। हंसते हुए चीजों को ठीक किया जा सकता है। और मुस्कुराना तो अपने आप में एक अच्छी एक्सरसाइज भी है। ये तो आप जानते होंगे कि मुस्कुराने को भी एक अच्छी एक्सरसाइज कहते हैं। और आजकल तो कई जगह पर लोग मुस्कुराना भूल गए, इसलिए लाफिंग क्लब बनाए गए हैं, जहाँ पे विशेष करके उनको किसी न किसी तरह से हाँ 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 करके नकली ही सही हंसाया जाता है। तो हम भी अपने जीवन में खुद हेल्दी रहे, मुस्कुराते रहे। चीजें तो आएंगी, लोग तो तरह तरह के होंगे, परफॉर्मेंस तो अलग अलग लोगों की रहेगी, और प्रेशर्स भी अनेक प्रकार के रहेंगे। हम जानते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर पॉलिसी प्रेशर होता है, पॉलिटिकल प्रेशर होता है, अधिकारियों का अपना नेचर होता है, कार्य समय पे करना होता है, कोई काम नहीं करता है उसके हिस्से का काम भी आपको करना पड़ता है। प्रेशर्स मस्ट बी कम। पर हम क्या करेंगे? उसको दोष देंगे या अपनी एनर्जी को बढ़ाएंगे? सर्दी आने वाली है तो हम क्या करते हैं? सर्दी के लिए गर्म कपड़े पहले से तैयार करते हैं। गर्मी आने वाली है तो हम क्या करते हैं? घर में एसी लगवाते हैं, कूलर लगवाते हैं, ठंडा घर रहे उसकी कोशिश करते हैं।
तो जब जीवन में प्रेशर तो आना ही है, जीवन में तकलीफें तो आनी ही है, तो क्या हम उसको ना आने के लिए कुछ कर सकते हैं? नहीं। हम अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो ये है जीवन का फंडा। किसी को भी ब्लेम करके, किसी को भी दोष देके हम जीवन ना चलाएं, परंतु हम खुद को और बेहतर करें। बच्चों के लिए तो हम बचपन में कहते थे कि ब्लैक बोर्ड पर एक लाइन बनाते थे और क्या कहते हैं, बिना टच किए इस लाइन को छोटा कर दीजिए। तो क्या करते थे, क्या करते थे? बिना टच किए किसी लाइन को छोटा करना है तो पैरेलल एक बड़ी लाइन बना दो। ये फंडा तो हम सब ने सीखा है और सिखाया है। जीवन का भी यही फंडा है। किसी भी बात को छोटा बना देना है तो अपने आप को बड़ा बना दीजिए। यहाँ हमारा एक बहुत सुंदर गीत है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। अगर हम ये कह दें कि मैं बड़ा हूं, मेरा साथी ईश्वर बड़ा है, मेरे पास सद्गुणों की शक्ति है, मेरे पास सब शक्तियां हैं, तो अपने आप मुश्किलें छोटी होती जाएगी। सिर्फ करना क्या है, खुद के लिए टाइम निकालकर खुद को भी पढ़ाना है, खुद को भी और तैयार करते जाना है। मैंपन को भूलकर, ईगो को छोड़कर रोज सीखते जाना है। सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती, ये तो हम बोला ही करते हैं। तो नई नई चीजें हम सीखें, खुद को एम्पावर करने की चीजें सीखें। जैसे यहाँ आपको बहनें कहती हैं, हमारे सेंटर्स पर बहुत सारे राजयोग के लेक्चर्स होते हैं। आप यूट्यूब में, सोशल मीडिया पे भी बहुत सी चीजें मोटिवेशनल सुनते हैं। तो अपने ऊपर उसका प्रयोग करते रहेंगे तो आप अपने परफॉर्मेंस को भी और अपने आप को भी बहुत बेहतर बनाते जाएंगे। बहुत सी और चीज़ें आपको डॉक्टर राजेश भाई भी अभी सुनाएंगे। अभी हम केवल 2-3 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे, फिर आपको ब्रेक भी मिलेगा, शायद थोड़ी देर का ब्रेक भी है। सीधे होकर बैठ जाएं। जो भी कुछ हाथ में रखा हो तो हो सके तो पास में कहीं रख दें, हाथ को खाली कर दें। अपना ध्यान सभी आसपास की चीजों से हटाकर समग्र शरीर से भी हटाकर अपने मस्तक के मध्य एक ज्योति को देखने की कोशिश करें। दो आंखों के मध्य मस्तिष्क में विराजमान मैं इस शरीर में संचालक चेतना हूं। मैं एक शक्ति हूं। मुझ में अनंत शक्तियां हैं। खुद को एक शक्तिशाली चेतना के रूप में देखें।
परमात्मा ने मानव जीवन देकर मुझे कितना सुंदर अवसर दिया है। मैं इस जीवन से कितने न श्रेष्ठ कर्म कर सकता हूँ। मुझे जो व्यवसाय मिला है, मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ। मुझे अपने आंतरिक गुणों को समाज में शिक्षा के माध्यम से प्रसारित करना है। मैं स्वयं अपने आदर्श जीवन से अनेकों का जीवन परिवर्तन करने की क्षमता रखता हूँ। और ऐसे श्रेष्ठ दिव्य कर्तव्य से मुझे अनेकों की दुआएं लेनी है। ये दुआओं की पूंजी, पुण्य की पूंजी प्राप्त करने का सुअवसर मुझे खोना नहीं है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरे जीवन का सुंदर उपयोग हो रहा है। मैं अपने कर्तव्य में पूर्ण निष्ठा, पूर्ण परिश्रम, पूर्ण ध्यान देकर सफलता प्राप्त करता रहूंगा। परमात्मा से मुझे मेरे श्रेष्ठ कर्तव्य को पूरा करने की शक्ति प्राप्त हो रही है। ईश्वर मुझ पर बहुत खुश है। मुझे ईश्वर की आश को भी पूरा करना है। मैं अवश्य करूंगा। संसार में जितना भी हो सकेगा श्रेष्ठ बदलाव लाने का कार्य मैं अवश्य करूंगा। ओम शांति। ખૂબ ખૂબ આભાર. આપણે સર્વને આદર્શ શિક્ષક કઈ રીતે બની શકાય એની સુંદર વાતો આપણને અનેક એક્ઝામ્પલો દ્વારા આપી.
અને સાથે સાથે એ પણ વિશેષ ભાર આપ્યો કે આપણે સ્વ પરિવર્તનથી જ બાળકો આગળ પ્રેરણા સ્ત્રોત બની શકીએ છીએ. આપણે બધા પણ ઈચ્છીએ છીએ કે આપણું પરિવર્તન થાય, આપણા સ્વભાવ સંસ્કાર વાણીનું પરિવર્તન, પરંતુ આપણી પાસે તાકાત નથી. સ્વપરિવર્તનની જે તાકાત છે એ મેડિટેશનને આધારે આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. એ મેડિટેશન શું છે એની વિસ્તૃત છણાવટ આપ સર્વને બ્રહ્માકુમારી વિદ્યાલય આપના નજીકના જે પણ કેન્દ્રો હોય ત્યાં આપ જઈ શકો છો. સેફી સોસાયટી શાંતિદૂતની અંદર આ રાજયોગ શિબિરનું આયોજન 30 તારીખથી સવારે 7:30 થી 8:30 અને રાત્રે 7:30 થી 8:30 આ 2 સમયની અંદર થનાર છે. આપ અવશ્ય એનો લાભ લેશો. આપ સર્વને હમણાં 10 મિનિટની બ્રેક છે, જેની અંદર હમણાં આપ શરબત પી રહ્યા છો અને શરબત આપની પાસે આવે ત્યાં સુધી જે આપ ફ્રી છો તો આપને જે ચીટકી પ્રાપ્ત થયેલી છે આપ હમણાં એ ભરી શકો છો. શરબત પીધા પછી આપ ફ્રેશ થવા જઈ શકો છો અને ફરી આપ આપનું સ્થાન ગ્રહણ કરશો. ચીટકી લખ્યા બાદ આપ આજુબાજુ જ બધા જ એ ચીટકીને એકત્રિત કરશો જે અમારી બહેનો આપની પાસેથી આપને જે ચીટકી પ્રાપ્ત થઈ છે એને આપ વાળશો નહીં. આપ આપના અનુભવ એની અંદર લખી શકો છો અને ત્યાર પછી બહેનોને આપ આપશો. 10 મિનિટના બ્રેક પછી આપણને ડૉક્ટર રાજેશભાઈ સ્વસ્થ મન ઉપર આપણને પ્રેરણાદાયી પ્રવચન આપશે. 10 મિનિટની અંદર આપણે આપણું સ્થાન ગ્રહણ કરી લઈશું. ઓમ શાંતિ. જેમને શરબતની બોટલ નથી મળી એ હાથ ઉપર કરશો. ન મળી હોય આગળ જ, પાછળ બધાને મળી ગઈ. સરસ. જેમને બહાર જવું જરૂરી છે તેઓ ભલે ઉઠજો, બાકી જેમને આવશ્યકતા નથી, ખૂબ સરસ મજાની અહીં એક્સરસાઇઝ કરાવવામાં આવશે. આપને પાસે આવતા વિદ્યાર્થી ભાઈઓ કે બહેનોના અક્ષર કેવી રીતે સુધરે, તેઓને સ્પોન્ડિલાઇસિસની તકલીફ ન થાય, તેઓના શરીર અને કમર સ્વસ્થ રહે, તે પ્રકારની ખૂબ સરસ મજાની એક્સરસાઇઝ છે. આપ અહીં સરસ મજાની ટ્રેનિંગ લેવા માટે આવ્યા જ છો તો આ પણ એક ટ્રેનિંગનો ભાગ છે. જરૂરથી આ એક્સરસાઇઝ પણ ખૂબ ખુશીથી કરતા રહેશો. તમારી પાસે જે બોટલ છે એ બોટલને તમારી પાસે લેવા માટે આવશે અમારા વોલેન્ટિયર ભાઈઓ અને બહેનો, ત્યારે આપ એમને આપશો. જેમણે પણ શરબત પી લીધેલું છે તેઓ પહેલાં ચીટકી લખી લો. જે પરચી અમે તમને આપી છે એ પરચી લખી લો અને તમારામાંથી જ સ્વૈચ્છિક 4-5 બહેનો કે ભાઈઓ ઊભા થઈ આજુબાજુમાં જેમની પણ પાસે પરચી લખાઈ ગઈ છે તે એકત્રિત કરશો. સરસ મજાની લીડરશીપ આપણે સૌ અહીંયા જ કેળવીશું. લખી લીધી હોય તો એકત્રિત કરો અથવા તો અહીં આગળ આપીને પછી આપ ફ્રેશ થવા માટે જશો. હર્ષાબેન આવી જાઓ. પી લીધેલું છે. જેમણે શરબત પી લીધેલું છે અને ચીટકી પણ લખાઈ ગઈ છે પોતાની જગ્યાએ ઊભા થઈ જાઓ. ઊભા થઈ જાઓ. આપણે સૌ એક સાથે એક્સરસાઇઝ કરીશું. સરસ. શાંતિથી પી લો. મ્યુઝિક ચાલુ રાખજો ભાઈ.
पर्ची कोने कोने लखाई गई है जरा हाथ ऊपर करशो। बहुत सरस, आपस में एकत्रित करी लो। शिल्पाबेन जेमने लखाई गई है लेवा मांडो છે। रिद्धिबेन તમે લોકો પણ વચ્ચે વચ્ચે જાઓ લેવા માટે। ઉષાબેન આપ બધા ચીટકી લખાઈ ગઈ છે એમની લેવા માંડો। હા, पर्ची लखाई गई होय तो ब्रह्माकुमारी संस्थाना बहनों आपनी नजीक आवी रह्या छे। आप एमने पर्ची आपी देशो। જેમને બહાર ફ્રેશ થવા માટે નથી જવું તેઓ પોતાના સ્થાન ઉપર જ ઊભા થઈ જાઓ, કેમ કે હજુ આપણે અહીં 1.5 કલાક પૂરો કરીશું અને સરસ મજાની ટ્રેનિંગ લેવાના છીએ। સરસ વોકિંગ કરો, સ્ટ્રેચિંગ કરો, પોતાની જગ્યાએ જ ઊભા થઈને સ્ટ્રેચ કરો આખા બોડીને। બહુ સરસ। હવે હર્ષાબેન આપણને સૌને એક્સરસાઇઝ કરાવશે। આપ સ્ટેજ ઉપર પોતાનું ધ્યાન રાખશો। गर्दन, कमर, हाथ, आंगळीओ आ बधुं ज आपणा क्लासमां आवता विद्यार्थीओने पण आवी एक्सरसाइज जो 5-7 मिनिट करावीए तो तेओ पण स्वस्थ अने मस्त रहे। सरस, स्टार्ट। हंसता रहिए, करता रहिए, चेहरा ने प्रसन्न खुशनुमा राखिए। आ तमारा माटे अने तमारा क्लासना विद्यार्थीओ माटे छे। ભણવાના અને લખવાના ભારથી વિદ્યાર્થીઓને હળવા બનાવવા માટેની આ ખૂબ સરસ મજાની એક્સરસાઇઝ છે। શોલ્ડરના સ્નાયુઓને જેટલા સ્મૂધ રાખીશું એટલા આપણા હાથ, આપણી આંગળીઓ અને આપણા અક્ષરો ઉપર તેની અસર થશે। વિદ્યાર્થીઓના અક્ષર જો મોતીના દાણા જેવા કરવા ઈચ્છતા હોઈએ તો આ એક્સરસાઇઝ તેમને નિયમિત રીતે કરાવતા રહીએ।
એક્સરસાઇઝ તેમના આંગળાઓને સ્મૂથ કરશે, એના સ્નાયુઓને જટિલતાથી દૂર કરશે. ખૂબ સુંદર મજાના અક્ષરો, ચિત્રો તેમના હાથથી બની શકશે. અંગૂઠો અને બીજી આંગળી, જેનાથી તેનું લખવાનું મેક્સિમમ કામ થતું હોય છે. ખૂબ ધ્યાનથી જુઓ આ એક્સરસાઇઝ અને કરતા રહો. બંને હાથના કાંડાઓના સ્નાયુઓને સ્મૂથ બનાવવાની એક્સરસાઇઝ છે. આગળ પાછળ, શરીરના તમામ પોઈન્ટ્સને પ્રેશર આ તાલીઓ પાડવાથી મળે છે. ક્લાસરૂમનું વાતાવરણ પણ હળવું, ફૂલ તણાવ મુક્ત બને છે. ओम शांति. जोरदार तालियां अपने लिए. राजेश भाई हम सब के बीच में मौजूद हैं, सब बैठ जाएं. बहुत इंटरेस्टिंग सेशन अभी शुरू होने जा रहा है, आप सबको बहुत मजा आएगा इसमें. सबसे पहले हम सभी 3 मिनट परम पिता परमात्मा को याद करेंगे. सभी शांत होकर बैठ जाएं. प्रभु स्मृति का बहुत ही सुंदर गीत बजेगा. आवाज न करें, शांति बनाए रखें. परमात्मा स्मृति का पवित्र गीत सुने. ये मत कहो खुदा से